Hello guys, once again welcome to KV Dreamers Academy. I hope आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी and you're preparing very well for your upcoming exams. And this is the new video of Oil India Limited 2024. और today we are discussing the mechanical diesel trade questions. इससे पहले मैंने आपको mechanical diesel trade का एक पार्ट दे दिया है. ये आपका mechanical diesel trade का पार्ट 2 है, but in our ITI trade series ये आपका 7 या 8 पार्ट होगा. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फिटर ट्रेड, मैकेनिकल मोटर्स व्हीकल्स और उसके बाद वेल्डर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, मैकेनिकल डीजल ट्रेड, जितने भी ट्रेड है सारा क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ. तो इसका पूरा एक प्लेलिस्ट है. अगर अभी तक आपने सारे जो भी ट्रेड आपका है वो वीडियो अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया या फिर आप चैनल में नए हैं तो आप जाके सारा प्लेलिस्ट का कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं हमारे आई बटन में, या फिर मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. Which type of locking device is used on shaft and similar parts? So split pin, wire lock, internal circlip या फिर एक्सटर्नल सर्किल. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एक्सटर्नल सर्किल. और मैं आपको बता दूं ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. जो भी आपके सेंट्रल या असम आईटीआई ट्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है आपके, और ऑयल इंडिया लिमिटेड में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ. साथ ही साथ आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे नहीं मिल पाता ऑयल इंडिया ट्रेड का, तो मैं जितने भी सेंट्रल और असम में आपके आईटीआई ट्रेड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो सारे एग्जाम्स का क्वेश्चंस आपको कराता हूँ. सो वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल क्वेश्चन से बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए. Which type of nut required to align the axle shaft hole and slot of the nut for locking? So castle nut, chuck nut, thumb nut या फिर self lock nut. The correct answer for this question will be option number A आपका correct होगा इसके लिए, castle nut. So castle nut will be your correct answer. Next अगर हम लोग देखें which key is used for easy fixing and removing. easy fixing और removing के लिए कौन सा की का हम इस्तेमाल करते हैं? So feather key, give head key, hollow saddle key या फिर circular taper key. The correct answer will be give head key. Option number B इसका आपका correct answer होगा. Next है what is the material of positive plate in the lead acid battery? lead acid battery का positive plate में कौन सा material होता है आपका? टीन, lead peroxide, antimony या फिर spongy lead. The correct answer will be lead peroxide. Option number B इसका correct answer होगा. Next है what is the quenching media of normalizing? So water is पे open air, oil bath या फिर water bath. The correct answer will be open air. Option number B आपका correct होगा. आपका which marking media used to mark in the finished surface? So white was Prussian blue, copper sulfate या फिर cellulose lacquer. The correct answer will be Prussian blue. Option number B is your correct answer. आपका what is called the distance between TDC, that is the top dead center and the bottom dead center, जो आपके पिस्टन में होता है वो दोनों के बीच का आपका जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्ट्रोक साइकिल या फिर पावर या फिर टॉर्क. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोक कहा जाता है इसे. नेक्स्ट है आपका हाउ द पिस्टन स्ट्रोक इज डिफाइंड. तो पिस्टन स्ट्रोक को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डबल द थ्रो, हाफ ऑफ द थ्रो, इक्वल टू द थ्रो या 4 टाइम्स ऑफ थ्रो. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, डबल द थ्रो इसका करेक्ट आंसर बनता है. नेक्स्ट है which instrument is used to check the tappet clearance? So depth gauge, pitch gauge, feeler gauge या फिर wire gauge. The correct answer for this question will be option number C, जो कि आपका होता है feeler gauge. feeler gauge इसका correct answer बनता है. Next है what is the material of piston pins? So nickel, chromium, steel, cast iron, HSS या फिर bronze. The correct answer will be nickel, chromium, steel. What is the measuring instrument used to find the dia of a piston? मतलब डायमीटर आपसे पूछ रहा है. डायमीटर पिस्टन का अगर हमें फाइंड करना है तो इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर नॉन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर विल बी आउटसाइड माइक्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं. आपका व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रड बीइंग एंड? सो नीडल बियरिंग होता है, बॉल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग या फिर सेल बियरिंग. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी आपका ऑप्शंस में दिया हुआ है नीडल बियरिंग, बॉल बियरिंग, taper bearing and lastly the cell bearing. So cell bearing इसका correct answer होगा. Option number D will be your correct answer for this question. Next है आपका in which type of cooling system rate of cooling is very low? रेट ऑफ कूलिंग इनमें से सबसे कम किस में होता है? तो थर्मोसिफन सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम या नॉन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, थर्मोसिफन सिस्टम में आपका कूलिंग बहुत ही कम होता है. How the water pump get drive in pump circulation cooling system? So by belt, by gear, by chain or by coupling. The correct answer will be by belt. Option number A आपका correct answer बनेगा. Next question है what is the material generally used for manufacturing inlet manifold? So copper, steel, plastic या फिर aluminium alloy. The correct answer will be option number D, aluminium alloy का यूज करते हैं हम लोग for manufacturing inlet manifold.
आपका वेयर इज द पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन इज फिटेड, तो पॉजिटिव क्रैंक केस का वेंटिलेशन कहाँ फिट होता है, तो मफलर एंड एयर क्लीनर, कंट्रोलर एंड एयर क्लीनर, फीड पंप एंड एयर क्लीनर, या फिर इंजन ब्रीथर एंड एयर क्लीनर। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनता है इंजन ब्रीथर एंड एयर क्लीनर। आपका विच पार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ करंट इन अल्टरनेटर, सो रेगुलेटर, रोटर कोइल, स्लिप रिंग, या फिर रेक्टिफायर डायोड। सो बैक फ्लो के लिए करंट का रेस्पॉन्सिबल होता है आपका रेक्टिफायर डायोड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा इसके लिए। और आपको इन्फॉर्मेशन देना था मुझे कुछ जो कि आपका एडीआर एग्जाम से रिलेटेड है और असम पुलिस एंड ऑल्सो रिलेटेड टू योर अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। तो जो भी आपका इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उनके लिए मेरा वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट चल रहा है। सारा प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैंने आई बटन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, प्रीवियस जो एडीआर एग्जाम था वो मैंने क्लियर किया है, तो इस एग्जाम का मुझे जितना आइडिया है मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको हेल्प करने का। और जितने भी कंटेंट है एडीआर, एपीएससी और असम का, वो सारे कंटेंट में आपको बहुत ही एनालाइज करके देता हूँ। जो भी कंटेंट आपके असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और प्रीवियसली मैं जो आपका वीडियो बना रहा था वो मेरे नोट से बना रहा था एडीआर के, तो ये पुराना वीडियो हो सकता है बट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वीडियो है। उसका सारा लिंक, जितने भी मेरे ओल्ड वीडियोस के लिंक है, मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरे एडीआर के नोट्स का लिंक है और प्रीवियसली मैंने एडीआर क्लियर किया है, तो आपको पता लग ही गया होगा कि वो कितना बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। सो जितने भी ओल्ड कंटेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कंटेंट है, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट, which of the following are the fundamental units? So length, mass, volume, length, mass, time, length, mass, area, or none of the above. The correct answer will be length, mass, time is your correct answer. Next है आपका which denote what denotes m in mks system, तो mks system में आपका हम लोग मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन या नॉन ऑफ द अबव क्या बोलते हैं m को, तो m को हम लोग मीटर कहते हैं mks सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट, तो ब्रास मेटल, ब्रॉन्ज मेटल, जिंक, या फिर फेरस मेटल। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका फेरस मेटल होगा इसका करेक्ट आंसर। Which mechanical property of a metal offers resistance to elastic deformation of cutting tool? So ductility, malleability, hardness, या फिर toughness. The correct answer will be option number C. ये जो आपका हार्डनेस इसका एक प्रॉपर्टी होता है जो रेजिस्ट करता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का फॉर एनी कटिंग टूल, इन ए कटिंग टूल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए बॉडी पोजेस मैग्नीट्यूड एंड साइज अलोन, सिर्फ मैग्नीट्यूड और साइज जिस बॉडी में हो उसे क्या कहते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, या फिर स्केलर क्वांटिटी। तो फॉर ओनली फॉर द मैग्नीट्यूड एंड साइज वी कॉल्ड इट द स्केलर क्वांटिटी। अगर उसमें डायरेक्शन लग जाए तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। आपका व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता होगा, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, जिसे हम लोग रो से भी डिनोट करते हैं। सो डेंसिटी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का वैल्यू क्या होगा आपका 4, 3, 2 या फिर 1। तो स्पेसिफिक हीट के लिए करेक्ट आंसर होता है वाटर का आपका 1। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वीडियो था आपके लिए। और जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियो है सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। सो गो एंड एक्सेस ऑल द लिंक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये फ्री कंटेंट पहुंच सके और सबको इसका बेनिफिट ले सके। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड प्लीज क्लिक द आई बटन फॉर ऑल माई कंटेंट इन दिस चैनल। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।